वापस जाता हूँ। वो आपने जो वर्स प्रिपेयर किए हैं, यू कैन रिपीट इट, इट्स Yeah, फाइन। that's fine actually. We most मतलब I don't know, some of us maybe missed it, may even I have missed it, so Basically, he gives reasons why he should be killed, and then Arjuna tells him the reasons why he doesn't want to kill. वो सब हो चुका था। ये वाला हो गया था। कृष्णा ने बोला था अर्जुना यू हाँ, शुड। कृष्णा ने जो रीजन दिए थे कि उसको क्यों मारना है, वायलेंस क्यों करना है, अच्छा अच्छा, ही ठीक है। गेव 5 reasons, वो सब हुआ था। ठीक है। उसके बाद आफ्टर रीचिंग हिज ओन कैंप अर्जुना अलॉन्ग विद हिज डियर फ्रेंड, ये हो गया था क्या? कौन सा वर्स? 41 हुआ था क्या? मैंने लिखा था क्योंकि मुझे याद है 40-41 हुआ है, उसके बाद का मुझे भी याद नहीं। आई थिंक 40-41 तो हुआ ही था। ओके, 42 में है श्री सूत गोस्वामी सेड द्रौपदी देन दिस सॉ। वाज नॉट डन। अच्छा, दिस वाज नॉट डन। सो विल स्टार्ट हियर, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर करा था वो तो मैं बोलूंगा ही, ठीक है नहीं ना? नहीं, प्लीज, यस। है ना? विल नहीं, विल स्टार्ट विद 1.7.42, ठीक है? ओके। तथा हृतं पशुवत्पाशबद्ध वाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतं पशुवत्पाशबद्धं वाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं कृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। Translation. Sut Goswami, Sri Sut Goswami said, Draupadi then saw Ashwatthama, who was bound with ropes like an animal and silent for having enacted the most inglorious murder. Due to her female nature and due to her being naturally good and well behaved, she showed him due respect as a Brahmana. Purport पढ़ेगा कोई? yes, Prabhu. Hare Krishna. Ashwatthama was condemned by the Lord himself, and he was treated by Arjuna just like culprit, not like the son of Brahmana or teacher. But when he was brought before Srimati Draupadi, she, although grieved for the murder of the sons of her sons, and although the murderer was present before her, could not withdraw the due respect generally offered to the Brahmana or the son of a Brahmana. This is due to her mild nature as a woman. Women as a class are no better than boys, and therefore they have no discriminatory power like that of a man. Ashwatthama proved himself to be an unworthy son of Dronacharya or of a Brahmana, and for this reason he was condemned by the greatest authority, Lord Sri Krishna. And yet a mild woman could not withdraw her natural courtesy for a Brahmana. Even to the date, in a Hindu family, a woman showed proper respect to the Brahmana caste, however fallen and heinous a Brahmana Bandhu may be. But the men have begun to protest against Brahmana Bandhus who are born in families of good Brahmanas, but by action they are less than Shudras. The specific word used in the shloka is Vam Sabhava, mild and gentle by nature. A good man or a woman accept anything very easily, but a man of average intelligence does not do so. But anyway, we should not give up our reason and discriminatory power just to be gentle. One must have good discriminatory power to judge a thing on its merit. We should not follow the mild nature of a woman and thereby accept that which is not genuine. Ashwatthama may be respected by a good natured woman, but that does not mean that he is a good as genuine Brahmana. Hare Krishna Prabhu. Hey Krishna, beautiful. एक्चुअली जो मैंने वर्स तैयार करा था ना, जो मैंने तैयारी करी थी, इट विल फिट इन हियर एज वेल, बिकॉज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे सुत गोस्वामी क्या बोल रहा है, व्हेन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, सडनली शी जैसी देखा, शी डिड नॉट केयर, शी डिड नॉट सी अ कल्प्रिट इन देयर, है ना? उसको क्या दिखा? उसको दिखा कि एक माँ का एक बेटा है ना? और उसको ये नहीं दिखा कि उसने कितना गलत काम करा है, कितना घटिया काम करा है, 2 बार करा है।
मतलब बच्चे को, अर्जुन के बेटे को भी मारने की कोशिश करी, सब कुछ करा, मेरे बच्चों के सिर काट लिए, उसको कुछ नहीं दिखा, उसको क्या दिखा, एक इंसान दिखा ना। ये जो चीज है ना, पहली चीज तो क्या बोल रहे हैं, कैसे उसको जानवर की तरह बांध के लेके आए वो लोग, है ना। और फिर शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर फीमेल नेचर, है ना। और दूसरा, बिकॉज शी वॉज गुड गुड एंड वेल बिहेव्ड पर्सन, उसने क्या करा, उसको रेस्पेक्ट दी एज ए ब्राह्मणा। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले, वर्स वर्स नंबर 35 जो मैंने प्रिपेयर किया था, उसमें भगवान भगवान बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं द्विज बंधु, है ना। द्विज बंधु का क्या मतलब होता है, रिलेटिव ऑफ ओ ब्राह्मणा। ब्राह्मण का बेटा है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला है, क्या बोला है, उसको बोला है द्विज बंधु, है ना। तो अश्वत्थामा को भगवान ने खुद ने द्विज बंधु बोला है, भगवान ने ब्राह्मण नहीं बोला, क्यों। लेकिन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हमारे पृथ्वी पर सो कॉल्ड जो हमारे सोसाइटी है, उन्होंने क्या कर दिया है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। आप किसी से पूछो इंडिया में आपका नाम क्या है, जैसे मेरे से पूछते हैं, मेरे अभी भी मैं गया था इंडिया तो मुझसे नाम पूछ रहे थे, तो मैंने बोला ब्रजेश, बोले ब्रजेश आगे क्या, है ना। तो जो भी आपसे पूछ रहा है ब्रजेश आगे क्या, मतलब जो आपका लास्ट नेम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको क्या लगता है, क्या जानने की कोशिश करते हैं ना। मेरे लास्ट नेम में तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैंने लास्ट नेम में लिखा है कि मेरा नाम है ब्रजेश बैंक वाला, तो उनको लग रहा हो कि मेरी, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ वो पता चल जाए। मेरे लास्ट नेम में मेरी नौकरी नहीं पता चलेगी, मेरा कैरेक्टर नहीं पता कर सकते हो कि मैं किस कैरेक्टर का हूँ, है ना। क्योंकि मेरा नाम ब्रिजेश शांति राम हो, लेकिन मैं खून खराबे वाला आदमी हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। मेरे लास्ट नेम से ना तो वो मेरा कैरेक्टर जान सकते हैं, ना ही वो मेरा जॉब जान सकते हैं, ना ही वो जान सकते हैं कि मैं मेरी क्या संगति है, ये भी नहीं जान सकते। लास्ट नेम से क्या, एक ही चीज वो लोग जान सकते हैं कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ, है ना। अब जय जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, तो उनको लगता है कि अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो फिर जब जब मैं लोगों को फिर बताता हूँ कि मिश्रा है, तो कहते हैं अच्छा ब्राह्मण हो। तो मैंने कहा नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ। बोले मिश्रा तो ब्राह्मण होते हैं। मैंने कहा सब मिश्रा ब्राह्मण नहीं होते। मैं उनको बोल देता था कि, फिर मैं उनको बताता था कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ब्राह्मणत्व जो है, ब्राह्मणत्व के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मेरे में नहीं है ना। तो अभी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ टाइम आई विल ट्राई टू हैव सम क्वालिटीज ऑफ ए ब्राह्मण, है ना। फिर उसके बाद जब मैं ऐसे बोला मैंने उन लोगों को, तो दे स्टार्टेड आस्किंग व्हाट डू यू मीन। फिर मेरे, आई हैड एन ऑप्शन, आई हैड ए चांस टू प्रीच, है ना, उनको बताने का कि भगवान क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में। और फिर हम लोग डिस्कशंस पे भी आ गए थे वहां पर, है ना, कि ब्राह्मण का बेटा बेटा जो होता है ब्राह्मण नहीं होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्राह्मण में होती है, क्षमा, दया, तितिक्षा, आर्जव, ये सारी की सारी क्वालिटीज बताने लग गया मैं। फिर ये कैसे आती हैं मेरे अंदर, क्यों नहीं है वो, है ना। मतलब मैंने उनको ये नहीं बताया कि किसी और पे बिना पॉइंट करे अपने ऊपर लेके, मैंने उनको बताया कि यार ब्राह्मण होना, अपने आप को ब्राह्मण बोलना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। लेकिन आ, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, अभी भी है, पर खैर पहले तो बहुत ही था। मेरी जो दादी थी, मेरी दादी तो मेरी दादी ना पढ़ी लिखी नहीं थी, और पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए उनके शास्त्रों को कोई ज्ञान नहीं था, है ना। और वो ज्यादा धार्मिक, धार्मिक तो क्या मतलब, वो सिर्फ पूजा पाठ अपनी करने जाती थी गंगा, वहां पर अपने तीर्थ स्थान था हमारे घर में, हमारे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, गोला गोकर्ण नाथ में। तो वहां पर नहा के वो आती थी, फिर अपना पूजा करती थी और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेती थी। तो जब वो नहा के आ रही होती थी, तो सामने से अगर कोई शूद्र आ जाता था तो वो वापस नहाने जाती थी। तो जब वो लोग आती थी तो वो बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ती हुई जाती थी, ताकि कोई शूद्र आगे हो, इधर उधर छुप जाएं वो लोग, ताकि वो देखें नहीं किसी को, चुपचाप घर आए। तो कहने का मतलब ये था कि ये तो अभी की बात है, ये मेरी दादी की वाली बात है, ये तो जब मैं, मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। तो इंडिया में बहुत टाइम से लग रहा है, इंडिया, किसी से पूछो इंडिया के बारे में, जैसे यूजुअली, अभी तो खैर थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन थोड़े टाइम पहले भी पूछते हैं, इंडिया का मतलब होता है कास्टिज्म। इंडिया का मतलब होता है कास्टिज्म। कि एक एक पर्सन जो थी हमारे कॉलेज में, वो तो मुझे पूछती थी, अच्छा इंडिया तुम वहां से आए हो जहाँ पर वो
बीवी मर जाती है तो अपने पति के साथ उसको जलना पड़ता है। मैंने कहा यार आप पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हो, आई डोंट नो, लेकिन आपकी हिस्ट्री की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कमजोर है। हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा होता था हमारे इंडिया में, और उसका फिर लोगों ने गलत उठाना शुरू करा, औरतों को जबरदस्ती जलाना शुरू करा, है ना। फिर फिर राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने सब कुछ, सती प्रथा को इलीगल करार दिया गया, ये सब सारी चीजें। एंड इट इज ओनली बिकॉज हम लोगों ने, है ना, हम जो इंडियंस हैं और सो कॉल सनातन धर्मी हैं, हम लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला, है ना। अब कास्टिज्म जो है, कास्टिज्म उगा कहाँ से, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, है ना। तो श्रीमद् भागवतम, जो रिटर्न फॉर्म जो हमारे पास श्रीमद् भागवतम का है, 5,000 साल का, 5,000 साल का हमें पता है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम तो बहुत पुरानी है, लेकिन 5,000 साल का रिटर्न हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। अब अ, जो भगवान है, भगवान कृष्ण जो कि सुप्रीम अथॉरिटी हैं, ठीक है, हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम अथॉरिटी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण खुद ही उसमें कहते हैं, किसी को याद है कौन सा वर्स है भगवत गीता का जो बहुत फेमस वर्स है, शिला प्रभुपाद बहुत यूज करते थे, जिसमें ये ब्राह्मणों के बारे में, 4 वर्णों के बारे में बात करी गई है। Anybody wants to try? भगवान 4 वर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, I'll say it. तो वो वर्ष था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम, जो 4 वर्ण है, मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं। और किस हिसाब से बनाए हैं? गुण और कर्म। ये नहीं बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म विभागशः, जन्म और कर्म के हिसाब से विभाजन है, ये नहीं बोला है। कैसे बोला है? गुण और कर्म के हिसाब से है। तो जिसके जैसे गुण होंगे उसका ही वही उसकी वर्ण होगा, है ना। 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये जो चारों वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं। और किस हिसाब से बनाए हैं? गुण और कर्म के हिसाब से। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर ये जो शूद्र है, इसमें अगर ब्राह्मण के गुण होंगे तो इसको क्या बुलाएंगे हम? ब्राह्मण, है ना। और अगर वैश्य में क्षत्रिय के गुण हैं तो उसको बुलाएंगे क्षत्रिय, और क्षत्रियो में अगर शूद्र वाले गुण होंगे तो उसको बुलाएंगे शूद्र। तो आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं, सो कॉल जो राजा हैं, है ना, जो क्षत्रिय क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लोग होते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट इवन शूद्र, शूद्र से भी नीचे हैं। क्योंकि शूद्र होने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, यू शुड नेवर लाई, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ शूद्र। तो हम लोग अपने आप को भी ले लें तो आई डोंट थिंक वी आर इवन एट शूद्र लेवल, है ना। तो आचार्य कहते हैं, और 9th चैप्टर का 32 वर्स वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। एक और चीज है, क्या हुआ है, लोगों ने ये बता दिया, इंडिया में क्या बोलने लग गए लोग कि अरे तुम शूद्र हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन ये 9.32 वर्स है, माम ही पार्थ पाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जिस अगर तुम मेरा आश्रय लेते हो, है ना। और कहते हैं ये पीसु पाप योनय, डजंट मैटर आप किस योनि में जन्म लिया आपने, भले ही आप कुछ भी हो, आपको क्या मिलेगी? भले ही आप स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपको क्या मिलेगी? पराम गति। इंपॉर्टेंट क्या है? आश्रित्य, आप मेरे पे कितने आश्रित हो, है ना। अगर आप मेरी शेल्टर ले रहे हो, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जो मेरा आश्रय लेता है ना, उसको परम गति मिलती है, डजंट मैटर वो किस किस उसका हो, है ना। ये जो वैसे भी ये वर्स थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को, वैश्य को और शूद्र को, इन तीनों को एक ही जगह डाल दिया गया है ना। और जो हमने वर्स पढ़ा अभी अभी, कहाँ गया वो, 17, नहीं कौन सा, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, 42, है ना, 1742, ये वाला जो वर्स है, इसमें भी क्या बोला है कि आ, इसमें भी क्या बोला है कि फॉर बीइंग
फीमेल नेचर, बिकॉज ऑफ द फीमेल नेचर। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि even to date a Hindu family woman shows proper respect to Brahmana caste, however fallen and heinous a Brahmana बंधु में भी। मतलब अभी क्या है, मैं आपको बताऊं ना, कोई कितना भी घटिया आदमी हो, लेकिन अगर वो भगवा वस्त्र के पहन के हमारे घर के सामने आता है तो मम्मी अभी भी उनको उसी तरीके से रेस्पेक्ट देती हैं जैसे एक सन्यासी को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ पर एक और चीज बोल रहे हैं ना, कि गुड मैन और वुमेन एक्सेप्ट्स एनीथिंग वेरी इजली बट अ मैन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस डज नॉट डू सो। क्या बोला है, गुड मैन और एवरेज इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें तो इसका मतलब ये क्या है, ये है क्या, जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती है वो गुड नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बोला है वेन जो होते हैं ना, जो एकदम एकदम सीधे साधे से लोग होते हैं, तो स्त्रियों को बोला जाता है तो बहुत सीधी सादी सी होती है, बहुत सीधे साधे इन द सेंस, स्त्रियां जो हैं वो अपने इमोशन से काम लेती हैं, ये हमारा साइंटिफिकली प्रूवन है। और जो मेन होते हैं दे मोर लॉजिकल, लेकिन दैट डजंट मीन कि सारे मेन हमेशा लॉजिकल रहते हैं। हमारे में लॉजिक पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अभी राइट नाउ आजकल की कलयुग की स्थिति में हम वी आर नियरली द सेम। मेन और विमेन में अभी कोई डिफरेंस रहा नहीं है। हम लोगों को जिस तरीके से लाइक आई समटाइम्स क्राई व्हेन आई सी कोई इमोशनल मूवी। When I went to India, they showed me a movie called what was the movie name? Super 30, I think. Or there was another movie of Amitabh Bachchan called Goodbye. I actually cried 2-3 times in there, 3 or 4 times, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेरे को पता है वो लॉजिकली स्पीकिंग दैट्स अ मूवी, है ना, मुझे ये भी पता है, लेकिन समटाइम्स आर फेमिनाइन नेचर कम्स अप, masculine nature comes up, and same with women have both masculine and feminine। तो क्या होता है, कभी कभी उनका फेमिनाइन नेचर ज्यादा आ जाता है, उनको ज्यादा यूज करना पड़ता है क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं तो ज्यादा फेमिनाइन नेचर यूज होता है। लेकिन अल्टीमेटली मेन एंड वुमेन दे आर एक्चुअली नियरली राइट नाउ इन द सेम पोर्शन। लेकिन पहले क्या होता था, विमेन की जो भगवत धाम जाने की जो पेस होती है वो कम होती है मेन से, बिकॉज मेन आर नॉट अटैच्ड। मैन का डिटैचमेंट जल्दी आता है, दे आर अटैच्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल के मैन दे आर अटैच्ड टू विमेन, गैम्बलिंग, अल्कोहल, intoxication, you name it, and they're addicted to it. Phone, right now their addiction is Netflix, Prime. I don't know what else is there. There is another like Stan or something. They are addicted to this, है ना। तो ऐसा नहीं है कि men में attachment नहीं होता। They are actually right now men are more attached to their gadgets and all those sort of things, है ना। They are more attached to having fun. Women अगर आप देखो ना, women are a little bit more sober these days. मैन वांट टू एंजॉय। आप देखो किसी भी घर में उठा के देख लो, किसी भी हस्बैंड वाइफ किसी को भी उठा के देख लो, मैन विल से लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। यू विल हार्डली सी अ वुमन से ओके लेट्स हैव फन। women will say let's go and let's go do something that kids will have fun, but men will say let's have fun, let's watch a movie, let's go out for picnic, let's go out eating, let's go out to Bali, this and this country, this place, let's go here, let's go to Cairns, to have fun. Women will think of their kids. I want my kids to have fun. So women are a little bit more sober than men in these days. लेकिन पहले क्या बोलते थे, बिकॉज women are more emotional, they are more attached to their kids, at the time of death जो आदमी होते हैं उनके लिए इजी होता था भगवान के बारे में सोचना, बट फॉर विमेन it was really hard because they are so attached to their kids, being a female, or because of their karma they have got a female body. So because of that, because उनका nature ही यही है, so they are more attached, so they used to leave the body thinking about their kids. And because भगवत गीता में लिखा है, यहाँ भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये याति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान कहते हैं कि अंत काल में आप जिस चीज को याद करोगे आपकी गति वही होगी। तो जो लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते चले जाते हैं, मेनली वो लोग अपने बच्चों के ही बच्चे बन के आ जाते हैं अटैचमेंट के कारण, है ना। इसलिए कहते हैं स्त्री को उसी बॉडी में मुक्ति मिलना मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है ना। जैसे
मेरी मम्मी भी हैं, उनके साथ भी यही है कि वो इतना ज़्यादा अटैच्ड है हम लोगों से कि मुझे पता है कि वो उनका जब अंत समय आएगा, जब भी आएगा, वो तो आना ही है, तो वो हम लोगों के बारे में सोच रही होंगी रादर देन थिंकिंग अबाउट कृष्णा। सो आई सिंसियरली होप अगर हम लोगों की प्रेयर थोड़ी सी काम आ जाए कि एट द टाइम ऑफ डेथ उनको किसी तरीके से कीर्तन चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, शी कैन एक्चुअली लीव हर बॉडी लिसनिंग टू कीर्तन एंड स्टफ। बट otherwise women they have to take another birth, है ना, when they, and it is easier for a male body, from a male body to go back home. I mean this is in the past, but nowadays it's hard both ways anyway, है ना। तो यहाँ पर जब उनको बोला है ना, because she was a female it happened। और यहाँ पर जो मैं आपको वर्ष बता रहा था 932 में, इसमें क्या बता रहे हैं, स्त्री, वैश्य और शूद्र, इनको क्या बोला गया है कि ये जो योनि है इनको कम बोला गया है, कमजोर योनियां बोला गया है, मतलब दे आर लोअर बर्थ। लोअर बर्थ इसलिए बोला गया है बिकॉज हायर बर्थ का मतलब होता है यू कैन गो बैक होम टू बैक टू गॉडहेड लाइक दिस, और इट इज वेरी हार्ड फॉर ए वैश्य, शूद्र और स्त्रियों के लिए उसी उसी बॉडी से जाना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, माम ही पार्थ पाश्रित्य, जो मेरे आश्रय में रहता है ना, जो मेरे शेल्टर में आता है, भले ही वो किसी को उसका हो, उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं कि देर इज नो प्रॉब्लम whatsoever, there is no problem whatsoever, whoever wants to go wherever they want to go they can go if they bhaktya mam abhijanati, if they are इन जो भक्त हैं वही मुझे जान सकते हैं। भक्त्या माँ में भी जाना थी, भगवान खुद ही कहते हैं भक्ति इज द ओनली क्राइटेरिया। और दूसरी चीज इसमें एक और है कि 2.4.18 देयर इज अनदर वर्स जो कि मैं आपको वापस पढ़ाना चाह रहा था। 2 पॉइंट ये वाला आई थिंक 2.4.18, हाँ। इसमें क्या है, किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवनास्खसादया येने च पापम यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कह रहे हैं कि किराट, कितने अलग अलग योनियां जो होती है ना, इंसानों में भी कितनी कैटेगरी होती है। हमने क्या सुना है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब शूद्र के भी नीचे क्या आता है, किराट, हूणा, आंध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, अभीरा, शुंभा, यवना, है ना, खासा। ये तो और भी नीचे नीचे डिग्रेडेड लोग हैं, है ना। कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं, ये डॉग ईटर्स जो होते हैं ना, उनसे भी नीचे आते हैं, है ना। और कहते हैं ड्यू टू हिज बीइंग सुप्रीम बैग, कहते हैं दे कैन बी प्यूरिफाइड बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। इन लोगों को भी अलाउड है ना। ये लोग जो हैं किराट, हूना, अंधरा, पुलिंदा, ये जो डॉग ईटर्स होते हैं ना, उनसे भी नीचे नीचे लोग हैं। बहुत ही घटिया क्वालिटी के लोग होते हैं ना, जो मतलब ऐसी यूनिक की जिसमें कोई चांस नहीं होता है भगवान को। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दे कैन ऑल्सो बी प्योरिफाइड, सो देर इज नो डिस्टिंक्शन। लेकिन हम लोगों ने एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों ने क्या बोला, भैया आप शूद्र हो, आप मंदिर में नहीं एंटर कर सकते। ये हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। देर इज नो शास्त्रास which says that we cannot, there are no shastras। एक सेकंड है ना, मैं भैया का फोन आ रहा है, एक सेकंड मैं उनको बोल देता हूँ। भैया मेरी क्लास हो रही है, मैं आधे घंटे में फोन करता हूँ आपको ना, है ना। तो आंध्र, पुलिंदा, सो ये लोग जो होते हैं, ये लोग भी भगवान के पास जाते हैं। देर इज नो डिस्टिंग्विश, देर नो डिफ्रेंशिएशन, लेकिन हमें लगता है कि डिफ्रेंशिएशन है ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को बोलते हैं पतित पावन, है ना। सो हाँ, लेकिन क्या हुआ, बहुत हजारों सालों से वहां पर किसी किसी भी शूद्र को अलाउड नहीं कर। अब तो खैर सब अलाउड है, अब तो सिर्फ फॉरेनर्स आई थिंक नॉट अलाउड है अभी भी। लेकिन बाकी हर कोई शूद्र हो चाहे कुछ हो, एवरीबडी इज अलाउड। लेकिन काफी सालों तक कोई भी अलाउड नहीं था वहां पर अंदर जाने के लिए, है ना, क्योंकि कहते हैं वो लोअर बर्थ है। लेकिन हमारे पूरे शास्त्र इससे पटे हुए हैं, पूरे भरे पड़े हैं। किस किस उससे भरे पड़े, किस चीज से भरे पड़े, इससे भरे पड़े हैं कि
देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप शूद्र हो चाहे कुछ हो, यू कैन गो बैक। वाल्मीकि जी थे, शूद्र थे, ठीक है। और अपने हरिदास ठाकुर जो जी थी, है ना, नामाचारी श्री हरिदास ठाकुर, नामाचारी जो हैं वो भी मुस्लिम फैमिली के थे, है ना। तो किसी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी लेवल के हो, यू कैन एक्चुअली गेट द हाईएस्ट बेनेडिक्शन, ठीक है। और लोगों ने क्या शुरू करा, इट्स नॉट इवन लॉजिकल। आप सोचो कि आप डॉक्टर के पास गए हो, और डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू ऑपरेट यू। न्यूरोसर्जन ने किसी न्यूरोसर्जन से आपने बात करी, उसने बोला ठीक है, आई डू द ऑपरेशन। उसकी बहुत अच्छी वो भी है, लाइक प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप गए ऑपरेशन थिएटर में गए, आपने देखा कोई और आ रहा है ऑपरेशन करने, हमने भाई ये कौन है भाई? बोले ये उनका बेटा है। अच्छा ये भी न्यूरोसर्जन है? बोले न्यूरोसर्जन तो नहीं है ये, लेकिन उनका बेटा है। अरे उनका बेटा है लेकिन ये सर्जरी करना जानता है? बोले सर्जरी करना तो इसने नहीं सीखा है कभी, लेकिन क्योंकि उनका बेटा है तो कर लेगा आपका सर्जरी। तो आप क्या करोगे? नहीं करने देंगे, है ना। तो हम लोगों को, जब हम एक नॉर्मल सी जो वो होती है, स्किल होती है, उस गुण जो होते हैं, गुण जिसको कहते हैं, उसके लिए हम लोग वो नहीं मानते किस कहाँ पर वो पैदा हुआ है। तो वाई डू वी एक्सेप्ट दिस, कि जो ब्राह्मण का बेटा होगा वो ब्राह्मण होगा, और जो शूद्र का बेटा होगा वो शूद्री होगा, है ना। हम लोग, और सेम चीज लॉयर के लिए, अगर लॉयर आया कोई जजमेंट पास करवाना हो, किसी लॉयर के पास आप गए जिसके पास लॉ डिग्री है, सपोज जो जज है उसके पास एक डिग्री है जिसके कारण वो जज बना है, उसकी क्वालिफिकेशन है। अब जजमेंट देते देते बोले नहीं आज मेरा जजमेंट मेरा बेटा देगा, जबकि उसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना, वो पान के ठेले पे खड़े होकर सिगरेट पीता है। अब वो क्या आके जजमेंट देगा? आप बताओ, कोई भी नहीं लेगा उसका जजमेंट, मानेगा ही नहीं, क्वालिफिकेशन ही नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? उसका यही मतलब हुआ कि हमारे शास्त्रों में कहीं मेंशनड ही नहीं है कास्ट सिस्टम। हम लोगों ने ही घुसा रखा है हर जगह कास्ट सिस्टम, और हम लोगों ने ही ये सारे जजमेंट्स आगे लगा रखे हैं, है ना। और अभी कुछ लोग बताते थे, आई थिंक हमारे जो गांव है उसके पास में कुछ गांव है, वहां पर ना जो शूद्र हैं वो यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी नाम उसमें नहीं रख सकते वो लोग। क्या बोलते हैं, भगवान के नाम। बोले नहीं नहीं साहब, हम कैसे रख सकते हैं, हम तो छोटी जाति के हैं, हम भगवान का नाम अपने बच्चे को कैसे दे सकते हैं? आप सोचो, इतनी इतनी बुरी तरीके से उनको ये पढ़ा दिया गया है सो कॉल्ड हायर कास्ट ने, कि दे कांट इवन है ना। तो और ये बात शिला प्रभुपाद ने बहुत बार बताई है कि यार सिंपल सी बात है यार, ये जो चार वर्ण है किस लिए बनाए गए हैं? जैसे डिविजन्स ऑफ लेबर है वैसे ही ये है ना। अब हमारी सोसाइटी में सारे के सारे अगर टीचर बन गए तो हमारे इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा बताओ, है ना। और अगर सारे के सारे लोग वो बन गए, क्या बोलते हैं, लॉयर बन गए, तो क्लीनिंग कौन करेगा, है ना। है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो क्लीनर है उसका जॉब जरूरी नहीं है। क्लीनिंग नहीं होगी तो एक लॉयर हो चाहे कुछ भी हो, परेशान सब लोग होने वाले हैं। तो हर एक लेवल पे हमारी जो सोसाइटी है, हर एक लेवल पे अगर ठीक से काम करना चाहती है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को वी नीड हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड ऑल्सो वी नीड समवन हु कैन कुक एंड क्लीन, है ना। वी नीड ऑल बैंडविथ। कोई भी गड़बड़ होगी बीच में, इट विल नॉट हेल्प अस, है ना। सो बट हाईएस्ट गोल पता होना चाहिए सबको। और ये शूद्र हो चाहे किराट हो, आंध्र पुलिंदा पुलकशा यवना जो भी जिस भी योनि का वो आदमी हो, उसका हाईएस्ट गोल क्या होना चाहिए? टू गेट प्रेम ऑफ कृष्ण, कृष्ण प्रेम, है ना। इसीलिए आप देखो ये जो हाईएस्ट गोल है, ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा होए तारो ए देश। भगवान क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं यारे देखो तारे कहो। ये नहीं बोलते कि जहां ब्राह्मण देखो तारे कहो, ये नहीं बोलते जहां पर क्षत्रिय देखो तारे कहो, यारे देखो तारे कहो। जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, जैसा भी है, उसको क्या करो? कृष्णा उपदेश दो, क्योंकि उनको पता है हाईएस्ट गोल जो क्या है, वो है कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये, और शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण जब आए, भगवत गीता उन्होंने दी, तो सम पीपल मिसअंडरस्टूड हिम, है ना। उनको समझ में नहीं आया चातुर्वर्ण्य माइनस सिस्टम वाला। तो उन्होंने क्या करा, वो बोला नहीं नहीं नहीं, भगवान ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन क्षत्रिय था, ये वो उसको याद दिलाया, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय की ड्यूटी कर, कुछ और मत कर। इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय रहना चाहिए, ये वो काफी सारी चीजें। तो जो कृष्ण जो मिसअंडरस्टूड हुए थे,
उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करा किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने बोला नहीं भैया कुछ भी हो आप, है ना, यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, है ना, अमार आज्ञा होए तारो ये देश। बोले मेरी आज्ञा है ये, तुम करो इस देश को तारो, तारो, है ना। तो कंफ्यूजन जो कर दी क्रिएट हो गया था कृष्णा के कारण, वो चैतन्य महाप्रभु ने खत्म कर दिया। और थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स भगवान ने ये प्रूव करा है कि ही डज नॉट गिव प्रेफरेंस टू बर्थ, कभी भी नहीं करा उन्होंने। अब पांडवों का जब अज्ञातवास हो गया था, मतलब पांडव आ गए थे अपना पूरा वनवास काटने के बाद, तो हम लोगों ने देखा था शायद इंट्रो इंट्रो भगवत गीता के इंट्रो में हमने देखा था कि वो जब वापस आ गए तो इन्होंने, कृष्ण भगवान गए भैया तुम कुछ भी दे दो यार, 5 गांव ही दे दो कुछ भी, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि इनको अपनी साइड में लाने के लिए दुर्योधन ने उनके लिए 56 भोग बनवाए, बहुत जबरदस्त सेटअप करवाया, है ना। और जब, लेकिन भगवान को पता है, भगवान को क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, वो क्या था, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से कुछ देता है तो अहम, ये ना कहते हैं तदहम भक्ति उपहतम, मैं लेता हूँ, है ना। कैसे कैसे लेता हूँ? जो मेरे को भक्ति से, जो मुझे प्रेम से खिलाया, है ना, वही मैं ग्रहण करता हूँ। तो दुर्योधन के मन में प्रेम तो था नहीं, और भगवान क्या है, सबके हृदय में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं हर किसी के हृदय में कौन बैठा है? मैं ही बैठा हूँ। तो उनको पता चल गया कि दुर्योधन के मन में प्रेम प्रेम तो है नहीं, वो तो मुझे चीटिंग करने के लिए बुला रहा है। तो उनका 56 भोग छोड़ा, कहाँ गए वो? सीधा जब घुसे महल में, सीधा कहाँ गए? विदुर के घर पे। विदुर क्या था? शूद्र का बेटा, है ना। ही डिड नॉट केयर, कहते। और फिर वहां पर उन्होंने, वो सॉन्ग है ना, दुर्योधन का मेवा त्याग, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो कहाँ से आया? वो इधर से ही आया। क्योंकि भगवान को कोई मतलब नहीं है 56 भोग, ही इज आत्मा राम, ही डज नॉट नीड 56 भोग, ही नीड जस्ट प्रेम। तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रियतात्मना, जो प्यार से मुझे खिलाता है, बस मैं उसका प्यार खाता हूँ, है ना। वो जो डिशेस खिला रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, विदुरानी जो थी, जो विदुर की वाइफ जो थी, वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि अरे वाह वाह, कृष्ण भगवान हमारे द्वार पे कैसे आ गए। वो तो उनकी बहुत बड़ी भक्ति, उसको समझ में ही नहीं आया। वो केले का छिलका छील के एक केला फेंक रही थी और उस छिलके भगवान को खिला रही थी, और भगवान देखो उस छिलके को भी खा रहे थे, है ना। दैट वाज हिज रेसिप्रोकेशन, ही वाज टेलिंग दी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ही ओनली नीड, केले का छिलका नहीं खा रहे थे, वो इंद्राणी के द्वारा दिया हुआ प्रेम खा रहे थे, है ना। एंड दैट इज वाई भगवान प्रूव करा है, भगवान को भी। अब जब भगवान विदुर के घर जा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं किसी शूद्र को मंदिर जाने से रोकने वाले? मतलब दिस इज इनसेन। लेकिन क्या है, हमारे क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप जाए। जो अधगर आधी नॉलेज होती है ना, वो बहुत उछल उछल के बाहर आती है लोगों के मुंह से, है ना। तो लोगों ने ज्ञान बांटना शुरू करा और सारा कचरा कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब है, लॉर्ड कृष्णा इज एक्चुअली अवेलेबल टू एवरी सिंगल पर्सन इक्वली। देर इज अनदर पास टाइम फ्रॉम दसुई, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना हुआ, चैतन्य चरितामृत में आता है। दसुई करके एक भागराम के वहां पर रहता था एक दसुई। वो शूद्र का बेटा था, और भगवान इनका इनका क्या बोलते हैं, जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। तो लेकिन उन लोगों को अलाउड नहीं था मंदिर में जाना। तो क्या होता, सिंह द्वार होता ना, वहां पर खड़े होकर दर्शन करता था। तो एक बार क्या हुआ, कोकोनट लेके आया भगवान को ऑफर करने के लिए। फिर उसको याद आया, अरे मैं तो जा ही नहीं सकता, ऑफर कर ही नहीं सकता। तो वो लेके ऐसे ही खड़ा था, भगवान को देख रहा था ऐसे। तो कुछ वो तो थे ब्राह्मण जो थे वहां पर, आए, बोले अरे दसुई, ये कोकोनट क्यों लेके आया? दसुई ने बोला ये ना भगवान को ऑफर करने के लिए। तो उन्होंने बोला अरे तेरा केस कैसे ऑफर करेंगे भगवान, तू कैसे ऑफर कर सकता है, तू तो है शूद्र है। उसने बोला हाँ अब मेरे को यही समझ में आ रहा है, तो एक काम करो, तो आप ऑफर कर दो, आप तो ब्राह्मण हो। उसने बोला हट, हम नहीं करेंगे। फिर किसी ने दया आ गई, उसने बोला चलो चलो करवा देते हैं, करवा देते हैं। वो लेके गए, जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ के सामने बोला कि वो दसवीं है, वो शूद्र है, लेकिन आपके लिए ये लाया है, आप लोगे क्या? एकदम से उनके हाथ से कोकोनट गायब हो गया। सारे लोगों ने, वहां खड़े हुए लोगों ने देखा कि ऐसा चमत्कार हो गया। लोग समझ लगे अरे बाप रे, दसवीं तो बहुत जबरदस्त भक्त है ना। लेकिन फिर भी ना दसवीं को उतनी वो मिली नहीं। एक बार क्या हुआ, दसवीं फिर मैंगो सीजन था, तो मैंगोज लेके आया, है ना, भगवान को खिलाने के लिए। वो वहीं खड़ा होकर सिंह द्वार पे खड़ा होकर देख रहा था। तो किसी ने देखा, अरे हट, बार बार तेरे, एक बार भगवान ने ले लिया, इसका मतलब थोड़े हमेशा तू खिलाएगा भगवान को। अब तेरा ये, हम तो तेरा हाथ ही नहीं लगाएंगे, है ना, ये ना, तू शूद्र है, तेरे हाथ से लिया हुआ फल भी हम क्यों हाथ लगाए।
तो उस 10वीं ने बोला कोई बात नहीं आप, फिर उसने कोशिश करी लेकिन किसी ने नहीं लिया, उसने बोला ठीक है मैं ऑफर करता हूँ खुद ही। तो 10वीं चुपचाप वहां बैठ गया, बोले जगन्नाथ ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऑफर कर, आप इसे ग्रहण करो। एकदम से सारे मैंगो उसके हाथ से गायब हो गए, सब लोगों ने देखा। फिर जाके ऑल्टर में देखा तो सब जगह मैंगो के छिलके गुठली उठली पड़ी थी, और पूरे जगन्नाथ के मुंह से वो टपक रहा था, उसका जो होता है ना रस मैंगो का। तो कहने का मतलब है कि भगवान कोई डिफरेंस नहीं करते, हम लोग डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लोगों को इस तरह की मूवी बनानी पड़ जाती है केवल ओ माय गॉड जैसे, जिसमें लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली, जिन लोगों को उनको भी नॉलेज अधूरी है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी अधूरी है। कहते हैं ब्लाइंड पर्सन लीडिंग अनदर ब्लाइंड पर्सन, है ना, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आदमी में होती है वो होती है ह्यूमिलिटी की। हम लोगों ने सुना है त्रिनादपि सुनिचना तरोर इव सहिष्णुना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या बोलते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को किसी अपने गुण पे और अपने कर्म पे दोनों पे घमंड नहीं होना चाहिए। जिसको घमंड हो गया, जैसे जिस ब्राह्मण को अपने गुण और कर्म के हिसाब से, अगर वो ब्राह्मण है लेकिन जैसे उसको उस पे घमंड आ गया तो ब्राह्मणत्व से नीचे गिर जाता है तुरंत ही, है ना। जैसे ही वो अवेयर हो जाता है, अरे वाह मैं तो हायर क्लास का बंदा हूँ, जैसे ही उसको लगने लग जाता है मैं तो हायर क्लास का बंदा हूँ, वैसे ही उसका ब्राह्मणत्व नीचे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको ह्यूमिलिटी होनी ही पड़ेगी, अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, है ना। ये तो वही हो गया। तो हाँ, तो एक बार क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी जो थे, सॉरी सनातन गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला सनातन गोस्वामी आए हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने उनको बुलाया कि उसको लेके आओ सनातन को मेरे पास। तो लोगों ने बताया सनातन गोस्वामी को, जाके कह रहे चैतन्य महाप्रभु आपको याद कर रहे हैं, चलो चलो चलो। वो बहुत खुश हो गए, वाह भगवान मुझे याद कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करे, उन्होंने वहां से आए, पूरे जो बीच वाला रास्ता है बहुत लंबा रास्ता है, बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में आए, तो उनके रेत पे चल चल के उनके पैर के छाले पड़ गए। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अरे सनातन तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, कौन से रास्ते से आए। तो बोले मैं तो उधर से आया, क्या बोलते हैं बीच वाले रास्ते से। तो उन्होंने बोला बीच वाले रास्ते से क्यों आए, ये तो शॉर्टकट, यहाँ से सीधा ही आ जाते हैं। तो उन्होंने जो बात बोली वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या बोला कि देखिए सनातन गोस्वामी बाय द वे ही वाज जो दबीर खास, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, जो सुल्तान था उसका प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो बहुत रईस आदमी थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, उन्होंने बोला देखो मैंने ना उनके घर काम करा हुआ है, क्या बोलते हैं मुसलमान के यहाँ, तो मैं बहुत ही वैसे नीचे नीचे उसका हूँ। तो मैं नहीं चाहता, और मैं अगर आप जहां से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हो वहां से मैं आता तो यहाँ पर सारे जो जगन्नाथ के जो बहुत ही मेन डिवोटीज हैं, मतलब जो ये ब्राह्मण वगैरह हैं, इनके ये लोग मुझे छू लें कुछ हो जाए तो इनको वापस से मतलब ये अशुद्ध हो जाएंगे, फिर इन भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। उससे बचाने के लिए मैं इधर से आया। तो भगवान ने उनको गले लगा लिया तुरंत ही, बोले यार देखो तुम्हारे में जो क्वालिटी है हम ह्यूमिलिटी की, ये तुम्हें वैष्णव बनाती है ना। वैष्णव, जो वैष्णव का दर्जा है वो ब्राह्मणों से भी ऊपर है ना। तो इसके लिए अभी जब शिला प्रभुपाद जब वहां से शायद पहली बार आए थे या दूसरी बार आए थे अपने सारे के सारे डिसाइपल्स को लेके वृंदावन में, वो जहां जहां वृंदावन की जो उन बातें बताते थे, जो बुक्स उन्होंने प्रभुपाद ने लिखी थी, बुक्स में वर्णन जिनका पढ़ा था, तो ये जब डिवोटीज वो देखने गए तो एकदम पागल हो गए, अरे वाह भगवान क्या, मतलब देखो ये वही वर्ष विग्रह है जिसके बारे में श्री प्रभुपाद बताते हैं, बड़े आंखों में ऐसे आंसू आ रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं। तो वहां पर जो पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, वो बहुत ही खुश हुए, बोले यार ये देखो क्या मस्त डिवोटीज हैं, गोरे हैं, है ना, ये उस कैटेगरी के आंध्रा पुलिंदा पुलकशा, है ना, ये उसी कैटेगरी के हैं, लेकिन देखो भगवान के प्रति कितनी बड़ी इनकी आसक्ति है। तो उनको क्या आशीर्वाद देते कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तुम लोग ब्राह्मण के घर पैदा हो, है ना, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है। जाके उन्होंने शिला प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि जाके ब्राह्मणों के घर पैदा हो। तो शिला प्रभुपाद बहुत हंसने लगे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, अब कहानी के अंदर एक और कहानी है। शिला प्रभुपाद ने कहानी सुनाई कि एक बार एक लेडी थी उसने, वो रियल स्टोरी है बाय द वे, शिला प्रभुपाद रियल स्टोरी सुना रहे थे कि लेडी के गांव में ना उसके कोई लीगल मैटर फंसा हुआ था, अनपढ़ लेडी थी। तो
वो इतना छोटा सा गांव था कि वहाँ का जो हाईएस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन था वो था कांस्टेबल। कांस्टेबल जो गांव में जो कांस्टेबल था उस वो हाईएस्ट पोस्ट थी गवर्नमेंट की। तो जब ये आदमी आए, ये मजिस्ट्रेट था, है ना, मजिस्ट्रेट था, तो जब ये लीगल मैटर उसने बताया उनको कि भाई तुम मेरा, तो उसने बोला, दया करके उसने लेडी का लीगल मैटर फटाफट सॉल्व कर दिया। वो लेडी इतना खुश हुई, उनको आशीर्वाद देने लगी कि यार भगवान करे कि तुम कांस्टेबल जल्दी 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 से जल्दी तुम कांस्टेबल बन जाओ। तो शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यार जो लोग इग्नोरेंस में होते हैं, जिनके पास नॉलेज कम होती है, वो लोग ये उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है ना। जो वैष्णव की दर्जा है वह ब्राह्मणों के काफी ऊपर है ना। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सारे के सारे जो है, ये चातुर्वर्ण जो बनाए गए हैं, ये वैष्णव से बहुत नीचे हैं, है ना। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन वैष्णव बनने के बाद ही यू कैन गो बैक होम बैक टू ऑर्डर। तो कहते हैं वो लेडी को जैसे इग्नोरेंस थी, उसको पता नहीं था, वैसे ही यहाँ पर ये जो पंडित जी जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण के घर में पैदा हो, उनको यही नहीं पता है कि तुम लोग सन्यासी हो, और तुम लोग वैष्णव सन्यासी हो। तो लोगों को पता नहीं है डिफरेंस, जो है ना, लोगों को पता नहीं है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शिला प्रभुपाद जब बता रहे हैं, एक सेकंड मैं उस वर्स पे वापस आ जाता हूँ, लेट्स कम बैक टू द वर्स। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण था और जो सन, इसको ब्राह्मण को बोला गया और टू द सन ऑफ ब्राह्मण, इसलिए बार बार शिला प्रभुपाद सन ऑफ ब्राह्मण कह रहे हैं, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ब्राह्मण है नहीं, है ना। ही इज अ सन ऑफ ए ब्राह्मण, जस्ट बिकॉज ही इज अ सन ऑफ ए ब्राह्मण डजंट मेक हिम ए ब्राह्मण, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन ए हिंदू फैमिली अ वुमन शोज प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मण कास्ट, हाउएवर फॉलन एंड हीनियस ब्राह्मण बंधु में भी, है ना। वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, लेकिन वो ब्राह्मण बंधु ही है। ब्राह्मण मतलब रिलेटिव ऑफ ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है ना। और शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक और बता रहे हैं कि एक और चीज बता रहे हैं कि वन मस्ट हैव गुड डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू जज अ थिंग ऑन इट्स मेरिट, है ना। कोई भी आदमी कैसा है उसकी मेरिट पे जानो, नॉट बिकॉज ऑफ कहाँ पर वो पैदा हुआ है ना। और पता करना जरूरी है, इससे पहले कि हम कोई डिसीजन लें, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना जरूरी है। वी नीड टू हैव एन इंटेलिजेंस, ताकि हमें कोई कुछ बोले तो शुड वी एक्सेप्ट इट और नॉट, दिस डिपेंड्स ऑन हम लोग कितना इंटेलिजेंटली उसको समझ पा रहे हैं। So we'll stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Anybody has any questions, comments? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, share some of your experiences of Vrindavan. You had such a Yes, great darshan. yes. मैं आपको एक्चुअली मैं शेयर करना, ये फ्यू कुछ चीजें हैं जो मैं अभी क्लास में भी शेयर करूंगा, अपनी जो नेक्स्ट फ्राइडे की जो क्लास होगी। बट आई है, मेरा जो एक मेरा भतीजा है, इज ओनली लाइक 9 years old, 9 years old। ही वॉक्ड 24 किलोमीटर्स, है ना। वृंदावन, वो जो गोवर्धन परिक्रमा 24 किलोमीटर की हमने पैदल करी थी, वॉक्ड फॉर 24 किलोमीटर। उस समय मुझे पता चला कि हम लोग सोच रहे थे कि हाउ अमेजिंग इज दिस, कि यार हम लोग क्या सोचते हैं अपने दिमाग में, वी शुड नॉट, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना लॉजिक लगाते हैं कि नहीं यार ये बच्चे को कहाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि वो हम पे बोझ बन जाएगा, है ना, नहीं चल We are पाएगा। limiting और ourselves all the time. हमको खुद को हाँ, नहीं पता हमारी लिमिटेशन क्या है। हाँ, तो हम लोगों को लगा वो हम पे बोझ बन जाएगा, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज आवर इंस्पिरेशन। यार ये बच्चे, हमारे पैर दुख रहे हैं पूरा ना, ऐसा लग रहा है कि पैर ऐसे ऐसे बीट आ रही, उसमें ढक ढक करके बज रहा है अंदर, पूरे पाँव की हालत खराब हो गई। लेकिन जब देखा ये जी 9 साल का बच्चा हमारे आगे आगे चल रहा है, तो वी गॉट इंस्पायर्ड। सो जिसको हम बोझ समझ रहे थे, ही वॉज इंस्पिरेशन फॉर अस, है ना। और दूसरी चीज मैंने देखा कि व्रज, मैं जब गया, जाते ही सबसे पहले जैसे ही वृंदावन में एंटर हुए, सामान रखा होटल में, सीधा मंदिर गए, वहां पर अपने भक्ति रसामी स्वामी महाराज से मिले, और उन्होंने पहले दिन ही हमें बता दिया हाउ टू सी वृंदावन, एंड दैट वाज फेबुलस। क्योंकि कह रहे थे अभी तुम बाहर जाओगे, तुम्हें गंदगी दिखेगी, लोगों का व्यवहार गलत दिखेगा, लोग तुम्हें सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए, बीड़ी पीते हुए दिखेंगे, है ना। तुम्हें सुअर, बंदर, ये सारी चीजें दिखेंगी, तुम्हें लगेगा ये कैसा वृंदावन है। तो उन्होंने हमें बताया हाउ टू सी वृंदावन। वृंदावन इज कैन नॉट बी सीन बाय दिस मटेरियल आइज एट ऑल। यू हैव टू सी द, कहते हैं ये जो लोग हैं, ये लोग जो यहाँ पर बीड़ी सिगरेट ये लोग पी रहे हैं ना,
these are यहाँ पर born है कई लोग, तो they are actually ब्रजवासीज, they are born in here, है ना। तो हम लोगों को उनकी कोई चीज दिखनी ही नहीं चाहिए कोई गलत चीज दिखनी ही नहीं चाहिए, मतलब वी शुड नॉट इवन पे अटेंशन टू इट, है ना। कहते कई बार ऐसा होता है ना कि छोटा बच्चा, अगर आपको छोटा सा बच्चा है कोई, है ना, कोई बच्चा, मैं खेल रहा हूँ, छोटा सा बच्चा खेलता खेलता आके मुझे पैर पे थप्पड़ मारने लगे ऐसे ऐसे, तो क्या मैं उसको पलट के थप्पड़ मारूंगा? क्या, छोटा सा बच्चा है, उसने ऐसे मार दिया, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं। कहते हैं व्रजवासियों को नेवर नेवर एवर थिंक एनीथिंग लाइक दिस। तो उसके बाद जो हमारा व्यू था ना वृंदावन के ऊपर, हम एकदम चेंज हो गया। फिर हम लोग बरसाना गए, वी कुड फील इट, यू नो। एंड कोई भी ऐसी चीज जो हमें दिख रही है, जो हमें व्रजवासी दिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, हम लोग मतलब मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं उनको कि यार देखो आप इतने लकी हो कि यू आर बोर्न इन वृंदावन, है ना, आप यू बोर्न इन ब्रज, जहां पर भगवान, हम लोग उस धरती पे लौट रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो वहां पर 24/7 उनके शरीर पे वही मिट्टी है ना। भले ही किसी भी उसमें फंसे हुए हैं वो लोग, वी डोंट केयर, क्योंकि दिस इज बिटवीन देम एंड कृष्णा, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद अस। ये सारी चीजें, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम लोग दर्शन वगैरह करने गए, जो वहाँ पर चैंटिंग हुई, वहां पर जो हम लोगों की फास्टिंग थी, एक तो वो चल रहा था, अधिक मास चल रहा था, तो उस समय ये सारी की सारी चीजों हुई, एकादशी भी आई उसके बीच में। इट वॉज, एक चीज तो मैंने देख ली है कि इफ यू डोंट गो विद devotees, there is no point going to Vrindavan. I'm telling you honestly, don't go to Vrindavan if you're going on your own. Don't go. Actually, don't go. Because you'll do more अपराध than you get सुकृति out of there. Guaranteed. Because वहां जाके आपकी नाक सुकड़ने लग जाएगी, ये क्या है, वो क्या है, लड़ाइयाँ करने लग जाओगे लोगों से। I got into that situation जहां पर I would have said something, अगर महाराज की बात मेरे को याद नहीं होती, I just प्रणाम करके I just walked off, है ना। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियलाइज दैट हाउ मच वी डोंट नो अबाउट वृंदावन एंड हाउ मच मटेरियली इन्फ्लिक्टेड वी आर, कि बीइंग इन वृंदावन at any point of time in itself is a blessing, है ना। but instead of that blessing we are looking at what is wrong, है ना। उससे मेरे को ये पता चला कि मेरे अंदर वो जो मैं बताता था ना, मक्खी और मधुमक्खी, I realized how much of a मक्खी I am than मधुमक्खी, because I was still looking at faults. मेरा दिमाग उधर ही जा रहा था। I have to divert it। मतलब मेरी जो डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, मक्खी वाली है। I was not looking for quality of this person who is born in a braj I'm looking at कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। सो मधुमक्खी वाली क्वालिटी अभी भी नहीं है, ये इस बात का एक तो जी रियलाइजेशन। आप ऐसी बात करोगे तो पता नहीं हम किस कैटेगरी में आएंगे। नहीं माता जी, लाइक यू विल बी सरप्राइज माता जी, बिकॉज आप लोग मैं यहाँ व्यास आसन में बैठा हूँ, इसलिए यू गाइस गिव दिस रेस्पेक्ट एंड आई टेक इट हम्बली, बिकॉज इट्स एक्चुअली फॉर गो स्ट्रेट टू माय गुरु महाराज एंड देन शिला प्रभुपाद। हाउएवर ट्रस्ट मी, आप लोगों की जो सिंसेरिटी है, आई मीन दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी माई सेल्फ। आई एक्चुअली समटाइम्स जब थोड़ा सा मैं इधर उधर डामाडोल हो जाता हूँ, आई थिंक ऑफ यू गाइस एंड रियलाइज कि आप लोग जो सिंसेरिटी के साथ आप चीजें करते हो, आई विश आई हैड दैट। एंड वो अभी आप लोगों को लगता है कि आई एम सेइंग इट आउट ऑफ माय ह्यूमिलिटी, बट इट्स एक्चुअली ट्रूथ, इट्स एक्चुअली ट्रूथ। क्योंकि जो सिंसेरिटी है, मैंने तो इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, ये कर लिया, हजारों लेक्चर सुन लिए, उसके बाद भी मैं कई बार अटक जाता हूँ। बट आप लोगों जैसी सिंसेरिटी अभी भी नहीं आ रही है। सो आई वॉज प्रेइंग फॉर दैट एंड आई वॉज प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, आई रियलाइज वन थिंग, धाम में जाके when you pray for others ना, there is nothing better than that, nothing better than that। मैं बता रहा हूँ, I felt so peaceful। मतलब मैं थोड़ी सी भी एंजाइटी कुछ भी है मेरे साथ, if I'm praying for you guys, मेरी सारी एंजाइटी everything vanishes like this। मतलब आप सोचो, and then I realized power of prayers। there are so many things that I wanted to do and it all manifested। वो मैं आपको, बहुत ही लंबी कहानी है, बट आई शेयर आइदर वन ऑन वन या फिर अपने भक्ति रक्षा की क्लास में। But it was amazing, it was one of the best Vrindavan trips I've ever had, because I was with another 150 devotees, 100 नहीं 350, another 350 devotees थे वहां पर, जिनके साथ में था। वहां पर हम लोगों ने बरसाना में बैठ के वी हैड वहां पर एक राजस्थानी, उन्होंने गाना भजन सुनाया सारे डिवोटीज ने, बिकॉज दे वर ऑल राजस्थानी पीपल एंड इट वाज अमेजिंग। तो उसका मतलब क्या था, भगवान कृष्ण को वो जो गोपी है ना, वो ताने कैसे देती हैं, कहते हैं कि
बांस की बांसुरियों पे घणो इतरावे। बांस की बांसुरी पे तू इतना इतरा रहा है, अगर सोने चांदी की होती तो काई करतो, मतलब सोने चांदी की होती तो तुम पता नहीं क्या करते, है ना। और फिर बोलते हैं कि सांवली सूरत पे घणो इतरावे, बहुत इतरा रहे हो सांवली सूरत पे, अगर बहुत सुंदर सूरत होती तो पता नहीं क्या करते। और ऐसे करके ना, it was a blissful moment when I saw and people were dancing on this bhajan, like all the women, they were all dancing। रात की करीब 12:30 बज रहे हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं, है ना, ऐसी छोटे से चबूतरे पे चल रही थी क्लास, प्रभु जी बता रहे थे क्लास, उसके बाद ये भजन सुनाया। सारे लोगों को आता था भजन, मेरे को, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, but it was the best, like you can see they were all in the mood of rather, gopis के मूड में हो गए थे सब लोग। they were talking about कि हाउ, मेरी मम्मी शी वॉज क्राइंग व्हेन शी वॉज लिसनिंग टू, उन्होंने पहली बार ही सुना था भजन, शी वॉज क्राइंग कि देखो कैसे भगवान को उल्हाना दे रहे हैं गोपियां, और अमेजिंग, इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। You बट don't have any clipping of this bhajan? यस, आई डू हैव Please दैट share. भजन, मैं भेजता हूँ, इट Hmm. इज ब्यूटीफुल भजन। राजस्थान मारवाड़ी भजन है, ब्यूटीफुल। आई 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 थिंक हम लोगों ने फिर जब वहां से वापस आए, माय नेफ्यू इज ए गुड कीर्तनियर, तो उसने ये भजन वापस सुनाया हम लोगों को। मम्मी को देखा मैंने, मम्मी तब भी रोना आ गया था उनको, क्योंकि पता नहीं है ना, इट हैज समथिंग, गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को सोचते हुए भी उसको। बट आई शेयर दैट। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे पता है आप लोगों ने, सब लोगों ने प्रे करा मेरे लिए। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई कुड हैव अ वेरी ब्लिसफुल वृंदावन यात्रा। And I really wish and hope that you guys would be able to do the same, like get the same experience or even better, है ना, next Prabhu time। ji, we have to do this all together. सारे भक्ति I would विश्वास love that। यात्रा में। I think we should go together, that will be the best thing। and हाँ, and we will have some senior devotees who can actually tell us about specific places, क्योंकि इन लोगों को, सब लोगों को पता था माता जी, ये लोग सारे लोग पता नहीं कितनी बार दे गो टू वृंदावन every second एकादशी। I don't know how, like, every second, third Ekadashi, and they do Govardhan Parikrama. Some people, एक बंदा है जिसे मैं मिला, he goes to वृंदावन 8 घंटे की ट्रेन में राइड करके, एवरी एकादशी 8 घंटे की राइड करके जाता है, एंड ही डज गोवर्धन परिक्रमा, और रात को बैठ के वापस आ जाता है। दैट्स इट, एवरी एकादशी, लाइक बीन डूइंग फॉर इयर्स। और वहां पर मैंने देखा कई लोग जमीन पे लेट के, दे आर डूइंग द परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लेट लेट के कर रहे हैं। और एक बाबूजी को मैंने देखा, ही हैज 1108, एक ही जगह पर 1108 पर एक दंडवत देते हैं वो, और जहां तक उनका हाथ पहुंचता है वहां पर सारी शिलाएं रखते हैं, फिर वहां से आगे स्टेप लेते हैं वापस 1000 एक, उनसे भी, उनको भी देखा मैंने। देयर लॉट ऑफ, मतलब हमको लगने लग जाता है कि हमारी भक्ति बहुत मिनस्कुल है। हम वो तो, हमें शिला प्रभुपाद ने बचा लिया किसी तरह, वरना तो कहीं नहीं है, कहीं वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। हम लोग कितनी कंफर्टेबल भक्ति कर रहे हैं, मतलब उस बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल। ये जो महाराज है जिनको हमने देखा, ही इज बीन डूइंग द परिक्रमा फॉर 24-25 ईयर्स। अभी तक एक भी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है उनकी। वो वहीं रहते हैं, सड़क पे ही रहते हैं। कोई आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो जाए, उनके पास एक ठेला है, साइड में ठेला सा लगा हुआ है, उस पर एक तिरपाल है, बस दैट्स इट। जो उनको कोई भोजन दे देता है वो ले लेते हैं, जो कोई पानी दे देता है वो पी लेते हैं। ही हैज नो हाउस, नथिंग, दैट्स व्हाट ही डज, है ना। लाइक I mean, and there are hundreds of them over there, hundreds. So lots of inspiration, and that's why Srila Prabhupada used to say once a year we all should go to the Dham. Um, and actually another Dham, which is Mayapur Dham, is actually much more better for us to go first time, because there is no aparadh in Mayapur Dham. Mayapur is Chaitanya Mahaprabhu's Dham. वहां पर कोई अपराध, वो इतने मर्सीफुल, उनसे कोई कुछ भी नहीं अपराध करते। यहाँ पर Vrindavan is a little bit more dangerous for us, not us, for some people, because of, including myself, because यहाँ पर अपराध बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि धाम अपराध जो होता है ना, it is very dangerous for our bhakti। तो इसके लिए we should first go with the devotees, and second stay with the devotees throughout, and if possible go to Mayapur Dham first rather than going to Vrindavan first. But anyway, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई विल प्रोबली सी यू ऑल ऑन। अच्छा, जन्माष्टमी के लिए आप लोगों ने, सब लोगों की अगर सेवा ले ली हो तो ठीक है, नहीं तो वो जो उन्होंने जो भेजा है
आई थिंक राहुल प्रभु ने जो शेयर करा है, आप लोग वहां पर अपना वो कर दीजिए। मैं तो आई विल बी देयर फ्रॉम मिड डे, आई थिंक, इन द सेंटर। तो मैं मेन वाले टेम्पल में तो आई प्रोबली गो इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जाके आ जाऊंगा। एंड देन फॉर द नाइट, फॉर द होल डे आई विल बी इन वेस्टर्न सबर्ब, एंड आई थिंक वी शुड ऑल डू दैट। आप लोगों को दिन में जाके आना हो तो जाके आ जाना मंदिर दर्शन करके, बट stay in the western suburbs so that we can do a lot of service. There is a lot of seva here. मेरे को तो अभी पता ही नहीं है कि क्या सेवा मिलेगी मुझे, बट वट एवर इट इज आई एम हैप्पी टू डू। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ असिस्टेंस चाहिए, आप लोग कुछ सेवा कर रहे हो, तो प्लीज मुझे बताओ, आई कैन बी इन्वॉल्व इन इट। एंड हैव ए वेरी ब्लिसफुल जन्माष्टमी फेस्टिवल। अभी तो फेस्टिवल सीजन ही आ गया है, राधा अष्टमी आ जाएगी 2 हफ्ते में, है ना। Anyway, any comments, anything anybody wants to share? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। जी। हाँ प्रभु, मैं एक चीज पूछना चाहती थी। फ्राइडे को वो प्रभुपाद अपीयरेंस डे टाउन हॉल में हो रही है ना, तो मंदिर में कुछ नहीं होगा? मंदिर में सुबह का प्रोग्राम मंदिर में होगा एक, लेकिन हम लोग तो इसी में जाएंगे टाउन हॉल में। मंदिर में भी होगा, लेकिन जगह लोग बहुत है ना, इसलिए हाँ नहीं। जी, प्रभु शाम को कुछ नहीं है। मैं उस दिन जॉब कर रही हूँ, तो 2 दिन तो मतलब छुट्टी नहीं ले सकती। तो मैं सोच रही थी कि बस दर्शन करने के लिए जाती आफ्टरनून में। हाँ जाओ ना, शाम को कोई कीर्तन तो चलता ही रहेगा वहां पर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जाइए आराम से। मंदिर ना दर्शन करने के लिए। हाँ जी जाइए जाइए। हाँ ऋचा माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? Hare Krishna Prabhuji, first of all, amazing experiences that you have shared. It was so nice to hear Prabhuji. और आप डिटेल में अपने क्लास में हम लोग को जब बताना, we would love to hear. We are eagerly waiting to hear about that. जो आप अपने स्टोरीज और एक्सपीरियंस और डिटेल में शेयर करोगे। प्रभु, मेरा क्लास से रिलेटेड एक रियलाइजेशन या क्वेश्चन भी है एक्चुअली, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले तो जैसे मेरे माइंड में भी कई बार ये चीज आई कि जो वुमेन को लेके प्रभुपाद ने बोला है ना कि बाय नेचर दे आर माइल्ड एंड जनरली दे आर सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे ना। तो बट सम टाइम जैसे कि आप जो कह रहे थे कि जो मेल होते हैं दे आर मोर लॉजिकल, फीमेल आर मोर इमोशनल। जबकि अभी कलयुग में देखते हैं, अभी रिसेंटली अगर हम करंट एज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मेल आर लॉजिकल एंड female are more emotional. Even many females are there who are more logical than male. तो मेरे मन में ये एक बार मैंने इसके ऊपर सोचा था कि ऐसा क्यों है, या ऐसा कैटेगराइज क्यों किया गया है, या ऐसे ट्रेड्स होते हैं या अब नहीं होते हैं। तो प्रभु मेरे मन में ये आ रहा था कि इज इट करेक्ट, मतलब आप उसको करेक्ट करना कि जैसे, क्योंकि हम लास्ट बर्थ में मे बी वी वर मेल और फीमेल, तो आई थिंक दैट्स व्हाई सम ऑफ द ट्रेड्स आर कैरिड बाय अस, कि कई बार वो प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे कि कुछ मेल जो होते हैं उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं ट्रेड्स होते हैं। कुछ फीमेल के अंदर मेल क्वालिटीज भी होती हैं, जैसे दे आर वेरी लॉजिकल और they are very intelligent, and sometimes they are having strength also. So is it related to our past birth, or प्रभु ये traits mix हो जाते हैं? It is actually, all of it is related to our past birth. Everything is definitely related to our past birth. Actually हम लोग जो अभी जिस तरह की हमारा मेंटल एटीट्यूड है, हमारा जो फिजियोलॉजिकल नेचर है अभी हमारा, उस फिजियोलॉजिकल नेचर के कारण जो हम कर्म कर रहे हैं, उसके कारण हमारी नेक्स्ट बॉडी ऑलरेडी तैयार हो रही है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इफ वी आर एंग्री लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है, अगर वो अपनी वाइफ को मिसट्रीट करता है, देन नेक्स्ट बर्थ में ही हैज टू बिकम हिज वाइफ एंड टू बी रेडी टू बी मिसट्रीटेड। सो मोस्ट लाइकली कलयुग में जो पॉपुलेशन है, the reason there are so many problems happening, transgender ये और वो, पहले भी होता था लेकिन इतनी क्वालिटी में नहीं होता था। उसका रीजन ये है कि अभी क्या है, हम लोग जब अंत काल में जब हमारी मौत होने वाली होती है, या तो हम लोग जैसे a man is thinking about a woman while he is dying, so next birth he will become a woman. Now what will happen is he will become a woman, but he will have some masculine qualities. That means he might be really smart, or he might be very powerful, थोड़ा सा powerful है और एकदम quick decision लेने वाला, whatever it is. Opposite is true as well.
अब मेल है, वाइफ के बारे में सोचते हैं, वाइफ बन गया, वाइफ मरी, हस्बैंड के बारे में सोचते, या हस्बैंड नहीं किसी लवर के बारे में सोचती हुई उसकी डेथ हुई, तो ही शी विल बिकम मेल, बट उसमें वो फेमिनाइन क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। क्या चलती रहती है चक्कर। और स्पेशली जब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कहा जाता है ना, यू 7 जन्मों का साथ है और ये सब चीजें ना, एक्चुअली इट कुड बी मोर, बिकॉज if you thinking about your enemy, you will either become their husband or wife as well in the next birth, you know, just to get rid of that thing. There is a story my mother used to say कि एक बार एक आदमी था, एक there was this sage, वो बैठा था और उसका एक आदमी था, वो वहां से आ रहा था, एक गाय थी यहाँ पर, गाय गाय भागती भागती आई और उसके उसके पीछे छुप गई, उसकी जो कुटिया थी उसके पीछे छुप गई। तो इस आदमी ने पूछा, अरे वो जो कसाई था उसने पूछा कहाँ गाय को देखा, तो उसने ऐसी उंगली कर दी इधर कि इधर इधर है वो गाय, अब है ना। तो उन्होंने जाए गाय को लिया और मार दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो गाय थी और ये गाय थी, अब ये गाय नेक्स्ट जन्म में कुछ और बनी, और क्या बनी, एक राजकुमारी बनी, है ना। और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आदमी था जो जो पॉइंट कर रहा था ना, पॉइंट फिंगर कर रहा, पॉइंट ऐसे कर रहा था, ये बना उसके उस राजा के घर में जो माली होता है, माली है ना, सॉरी माली नहीं, क्या बोलते हैं, पंडित। तो क्या हुआ, ये जो लेडी थी, ये जो राजकुमारी थी, राजकुमारी एक बार क्या हुआ, राजकुमारी बैठी थी और राजकुमारी की शादी हुई, शादी होकर उसका हस्बैंड जब घर आया तो वो क्या कर रही थी, वो ऊपर एक तलवार लटकी रखी थी बहुत पुरानी, तो वो सोच रही थी उसको उतार के अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूं। जितने में वो अंदर आता है तो उसके हाथ से वो तलवार गिर जाती है और हस्बैंड के गर्दन पे लगती है, हस्बैंड हस्बैंड का गर्दन कट जाती है, ठीक है। अब तो ये जो गर्दन कट के जो हस्बैंड गिरा है, ये वो कसाई था जो पिछले जन्म में गाय को जिसने मारा था, वो अभी इस तलवार से मर गया, उसको यहाँ सजा मिल गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रानी वो राजकुमारी से वो मर गया। अब राजकुमारी बोले तो मेरे को उसके हिसाब से सजा हो जाएगी अगर किसी को पता चला मैंने मारा है। तो वो देखती है कि गार्डन में ना वो पंडित जी क्रॉस करके जा रहे हैं, तो चलाने लगी, अरे पंडित ने मेरे इसको मार दिया, हस्बैंड को मार दिया। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। पंडित ने बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला नहीं, इस पंडित ने मारा है, मैंने खुद ने देखा है। तो राजा ने उसको बोला यार पंडित है, इसको सजा तो देनी है, लेकिन पंडित है सजा भी नहीं दे सकते। तो क्या बोला, इसका एक हाथ काट दो, ये वाला। तो इसका वही वाला हाथ काटते हैं जिससे उस पंडित जो उस ब्राह्मण उसने सेज ने उसको उंगली करी थी ना, ऐसे दिखाया था, वो गाय उधर है, तो उसका वो हाथ कट गया, तो उसको सजा मिल गई, ठीक है। अब ये जो बंदा था ये जो बंदा था जिसके हाथ कट गया, ये अपने गुरु के पास गया। तो उसने देखा, जैसे ही वहां पहुंचा, वो जो गुरु की जो वाइफ थी वो कही आ गए तुम सारे, और खूब गालियां दी उसको सुबह सुबह, कि सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं यहाँ पर, मेरे पति को कुछ काम धाम करने नहीं देते हैं, कुछ दक्षिणा लाओ तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो कहता है कि वो वहीं बैठ जाता है कि यार आएंगे गुरुदेव तब बैठूंगा। बोले गुरुदेव कहीं बाहर गए हैं, शाम को आएंगे। तो बैठा रहता है। गुरुदेव आते हैं, गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव ये, बोले हाँ शिष्य तुम क्यों आए हो। बोले पहले वो तो छोड़ो, पहले तो मुझे बताओ, ये आपकी आपकी जो वाइफ है, गुरु माँ जो है, वो आप वो क्या है जो आप लाकी ना, ऐसे क्यों है वो। तो कहते हैं, तो उसने गुरु ने बताया कि ये क्या है, मैं पिछले जन्म में कौवा था, है ना, और ये थी गाय, है ना। अब इस गाय के यहाँ पर एक फोड़ा हो रखा था, और मैं कौवा था तो मैं उस फोड़े को काट काट के खाता था, है ना। गाय नहीं, गधी थी, गधी थी, ये गधी थी और मैं कौवा था। तो उसके मैं पीठ नोच नोच के खाता था। और एक बार क्या हुआ, बाढ़ आई और मैं और वो दोनों एक साथ डूब के मर गए। तो अब ये मेरी वाइफ बन गई है, तो अब ये मेरा दिमाग नोच नोच के खाती है। दिस इज एक्चुअली इन पुरानास, दिस स्टोरी इज इन पुरानास। तो कहते हैं कि हमारी हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है ना कहीं से हम लिंक्ड है। हम लोगों के खुद के कर्मों के हिसाब से हमें हस्बैंड और वाइफ मिले हैं, और उसी कर्मों के हिसाब से हम लोगों को वो ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन लेकिन ये जो कार्मिक रिएक्शन है, इसको हम एक हथियार नहीं बना लेना चाहिए हमें, कि वी शुड नॉट यूज इट एज ए वेपन, कि यार देख मैं तेरे को इसलिए ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि तूने मेरे साथ गलत करा होगा। दैट्स नॉट ट्रू, है ना। इस कर्म में भी हमारी चॉइसेस हैं। वी चूज, व्हाट डू वी चूज टू बिकम इज इन विद अस, है ना। हम लोगों के कर्म कर्म का तो हमें लेखा जोखा मिल गया, हमारा सदगुण रजगुण तमगुण हमें मिल गया है ना, उसके हिसाब से। लेकिन हम उस तमगुण रजगुण तमगुण को कैसे यूज करते हैं, वो भी हमारी फ्री विल है।
जितना हम सतोगुण में रहेंगे उतना हम फ्री विल ज्यादा हमारे पास होगी, जितना हम तमोगुण में रहेंगे वो फ्री विल कम होती जाएगी बस। लेकिन अल्टीमेटली माता जी यू आर राइट, वी आर नो राइट नाउ कलयुग में देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ऑल द मेन एंड ऑल द विमेन दे आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, बिकॉज हम लोगों की इतनी मेल फीमेल हम लोग इतनी बार चेंज हो चुके हैं लास्ट कुछ जन्मों में, कि अभी जो हमारी जो क्वालिटीज हैं, फिजियोलॉजिकल जो क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एंड सेम विद विमेन। यस प्रभु, मैं यही क्वेश्चन, मेरा यही कंफ्यूजन था कि वो ट्रेड बेस्ड है ना जो प्रभुपाद ने बताया, तो वो तो सबके ट्रेड सब चेंज मिक्स हो गए, मिक्स एंड मैच हो गए, तो एवरीबॉडी इज फिट इनटू दैट कैटेगरी based on the characteristics and qualities. That's correct. और आपने देखो जो सबमिसिव होती थी ना लेडीज, जो बहुत सबमिसिव हैं अपने हस्बैंड पे, बहुत सबमिसिव हैं, दे आर एक्चुअली फीमेल इन द प्रीवियस लाइफ, इन दिस लाइफ एज वेल। उनमें वो ट्रेड्स आपको मेन वाले कम दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आज आप देखो, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, साइकोलॉजिकली भी हम लोग चेंज हो रहे हैं, और क्योंकि हमारे कार्मिक रिएक्शन से ऐसे हो चुके हैं कि हम इतनी बार रोल चेंज कर चुके हैं अपने मेल फीमेल के बीच में, तभी तो हमें बोला जाता है वी आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, वी आर एक्चुअली वी आर ऑल फीमेल्स, मेल इज ओनली वन, कृष्णा। बट उसमें भी हम लोगों का जो फिजिकल नेचर है वो चेंज हो गया इतनी बार कि वी आर ऑन ए वेरी सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ। शिला प्रभुपाद एक बार बोलते हैं, एक माता जी ने बोला कि प्रभुपाद, बिकॉज आई एम ए फीमेल, एम आई लेस देन मेन, लेस देन मेल्स? तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि ना ना, इफ बिकॉज आई एम ए फीमेल एम आई लेस इंटेलिजेंट? तो शिला प्रभुपाद ने बोला नो, इफ यू थिंक दैट यू आर फीमेल देन यू आर लेस इंटेलिजेंट। वो क्या बोलना चाह रहे थे कि डू नॉट judge yourself, look at yourself as a male or female, look at yourself as a part and parcel of Krishna, and that's it, that's your identity। ये मेल और फीमेल तो सिर्फ ऊपर ही एक हमने कपड़ा पहन रखा है उसका ही है, जैसे ये ग्रीन कलर का मैंने जैकेट पहन रखा है, दैट ग्रीन कलर डज नॉट डिफाइन हु आई एम, है ना? इसी तरीके से मैं मेल हूं या फीमेल हूं, दैट डज नॉट डिफाइन हु आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड इफ वी कैन हैव दैट एज एन आवर आइडेंटिटी वी विल नेवर गो रॉन्ग, है ना? Thank you, Prabhuji, for making it clear. Thank you so much. Hare Krishna. प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। I'll see you all on Janmashtami. Hare Krishna. Hare Krishna.